એક અભિગમ તૈયાર કર્યો કે મારે ક્રાઇસિસમાંથી બહાર આવવું છે. હવે એ ક્રાઇસિસ એટલે કે એ સંકટ જે છે એ સંકટને આપણે અવસર એટલે કે એક મોકો એટલે કે એક તક એમાં કેવી રીતે ફેરવી શકીએ. તો પહેલી વાત છે નોલેજ. જેટલું તમારી પાસે નોલેજ હશે ને એટલું તમે કોઈ પણ ક્રાઇસિસમાંથી વહેલા બહાર આવી શકશો. સો રાત દિવસ પ્રયત્ન કરવાનો કે હું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકું. તમારા ફિલ્ડ, ઇફ યુ આર એન mechanical engineering student, electrical engineering, electronics engineering, whatever, decide to be a student lifetime. 90 વર્ષની ઉંમરે પણ તમારી પાસે જ્ઞાન પીપાસો આવી જોઈએ. યુ શુડ બી નોલેજ થર્સ્ટી. તો નોલેજ થી છે ને એ માણસ એ ગમે તે સંજોગમાં એક રસ્તો મેળવી શકે છે. તમારી જેવી જ એક યુનિવર્સિટી છે IIT, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એટ મંડી. હમણાં 4-5 દિવસ પહેલા તમે ન્યૂઝપેપરમાં બહુ સરસ વાત સાંભળી હશે કે IIT મંડીના વિદ્યાર્થીઓ, સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ યોર એજ, college students, undergrad students, they decided that we want to turn this crisis into opportunity. આપણે આ સંકટને તકમાં ફેરવવી છે. બધા ભેગા થયા એટલે કે ઓનલાઈન ચર્ચાઓ થઈ. ચર્ચાના અંતે લોકોએ એક વાત પર આવ્યા કે can we make some productive element, a productive substance out of waste material that could be very useful to COVID-19 situation. ये एक विचार एमना मन में आया, एक विचार मन में आ गया कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम कोई प्रोडक्टिव मटेरियल बना सकते हैं. प्रोफेसर्स को बात की, टेक्निकल एक्सपर्ट से कुछ डिस्कशन हुआ और ये नतीजे पे आए कि हम लोग जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उससे कुछ बनाने का प्रयत्न करें. हम पानी पी के ये प्लास्टिक बोतल गार्बेज में फेंक देते हैं, जूस पी के ये फेंक देते हैं. उससे हम कुछ कर सकते हैं किंतु एनवायरनमेंट को भी बड़ी मदद हम कर सकते हैं. दैट इज वी टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एक प्रोडक्टिव बात, एक बहुत सस्ती चीज लेकिन कोविड-19 में उपयोगी हो ऐसी कुछ बना सकते. तो ये तो रॉ मटेरियल तो मन में तय आ गया कि ये वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से बना. फिर सोल्यूशन में उसको डिसॉल्व किया, उसके नैनो मेम्ब्रेन्स डेराइव किए और आप सभी को जान के आश्चर्य लगेगा कि IIT मंडी के स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली दे क्रिएटेड फ्रॉम दिस nano non-woven membrane which suffices the need of a mask, and that to the caliber of N95. N95 mask, N95 matlab 95% of unwanted things it will not allow through its membranes, through it. तो ये बेस्ट मास्क गिना जाता है. तो ये IIT मंडी के स्टूडेंट्स ने वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स में से वो प्लास्टिक को डिसॉल्व करते हुए नैनो मेम्ब्रेन्स डिराइव किए, उसमें से नैनो नॉन वोवन मेम्ब्रेन डिराइव किया और उसमें से फेस मास्क बनाया. और ये फेस मास्क प्रयोगशाला में रखा और अनुभूति भी की. तो दिस मास्क इज इक्विवेलेंट टू N95 मास्क और इट इज वॉशेबल. They say you can use it for 30 days and you can wash it 30 times. 30 दिन तक आप ये एक ही मास्क यूज कर सकते हो, 30 बार उसको वॉश कर सकते हो, उसके बाद आपको नया लेना है. लेकिन वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स में से ये बना है तो कितना सस्ता है. तो IIT मंडी के स्टूडेंट्स को ये विचार आया, ये विचार पे विमर्श किया, कोई टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल एक्सपर्टाइज ली और प्रयोग किया. प्रयोग में सफल हुए और आज एक बहुत बड़ी बात बाहर आई. तो आपके पास भी समय है, आपके पास भी बुद्धि है, आपकी बुद्धि कोई अन्य विद्यार्थी से कम नहीं है. तो आप भी अपना बुद्धि का उपयोग कर सकते हो. તમે પણ તમારી બુદ્ધિનો સારો ઉપયોગ કરી શકશો, એમાં જરાય ઓછપ નથી. તમે નક્કી નથી કર્યું એટલે. If you decide, you can. અંગ્રેજીમાં બહુ જ મોટું વાક્ય પીટર ડ્રકર નામના બહુ જ સારા મેનેજમેન્ટ ગુરુ એ પોતે કાયમાં કહેતા. If you decide, you can. તમે નક્કી કરો ને તો થઈ શકે. એટલે પહેલી વાત આ છે કે નોલેજ.
ખૂબ નોલેજ પ્રાપ્ત કરવાનું પોતાના ક્ષેત્રમાં અને એ નોલેજનો પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ કરવા માટે તકો ઊભી કરતા રહેવાની. તક આવે એટલે નોલેજનો પૂર્ણ ઉપયોગ કરવો and you can create. બીજી વાત છે ક્રાઇસિસના ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં પરિવર્તિત કરવાની કે પોતામાં આત્મવિશ્વાસ અને પુરુષાર્થની તૈયારી. તમને આશ્ચર્ય થશે કે COVID-19 શરૂ થયો ત્યારે ભારતમાં N95 માસ્ક બહુ ઓછા બનતા, પણ રાજકોટમાં એક સાવ ઓછી ભણેલી વ્યક્તિ એમણે નક્કી કર્યું કે આપણે N95 માસ્ક કેમ ન બનાવી શકીએ. 140 માણસોએ કોર્ડિનેશન કર્યું અને 40 દિવસમાં એ લોકોએ મશીનરી બનાવી અને આખી એસેમ્બલી લાઈન તૈયાર કરી અને આખી એસેમ્બલી લાઈન ટેકનિકલી સાઉન્ડ તૈયાર થઈ અને now they are producing 25,000 N95 masks every day, રોજ. એક બીજી એસેમ્બલી લાઈન, એક ત્રીજી એસેમ્બલી लाइन तैयार કરી રહ્યા છે. What I mean to say, अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जो मनुष्य का कर्तव्य है और कर्तव्य से बढ़ के आगे मनुष्य का गौरव भी है, तो ये कर्तव्य और गौरव को साथ में लेकर अगर आप चलेंगे तो पुरुषार्थ कर पाएंगे और आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज की वजह से आपको आत्मविश्वास आएगा, कुछ आप कर पाएंगे. तो एक कम पढ़ी हुई व्यक्ति उन्होंने तय किया तो आज 25,000 N95 मास्क वे रोज बना रहे हैं. तो ऐसे तो कई बातें, मैंने तो आपको 2 बातें कही. एक IIT मंडी के स्टूडेंट्स की बात कही और ये राजकोट में N95 मास्क बनाना शुरू हुआ वो बात आपको की. ऐसी कई बातें हैं. यू कैन टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी. आप संकट को एक अवसर में परिवर्तित कर सकते. तीसरी बात, जब संकट को अवसर में परिवर्तित आपको करना है तब बी क्लियर इन योर माइंड, बी ओपन फ्रॉम विद इन, सीक एडवाइस, जिसको हम प्रोफेशनल भाषा में कंसल्टेंसी कहते हैं. या आप स्टूडेंट हो तो प्रोफेसर को, लेक्चरर, टीचर को ओपन माइंडेड, ओपन हार्ट से जो प्रश्न पूछना है पूछो. आपकी जो वास्तविक परिस्थिति है वो वास्तविक परिस्थिति आप किसी एल्डर के साथ, अनुभवी के साथ शेयर करो. मन में और मन में घबराने की कोई जरूरत नहीं. मन में તમે લોકો મૂંઝાઓ એનો કોઈ અર્થ નથી. કોઈ વડીલ હોય, કોઈ અનુભવી હોય, કોઈ આ માર્ગે ચાલેલા હોય, જેને एक्चुअल डिफिकल्टीज फेस करी હોય, उन लोगों को मिलो, पूछो. अभी गणपत भाई ने बताया कि उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी. तो जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन, गणपत भाई को एडमिशन उन्होंने नहीं दिया तो आज वही यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त की. मतलब ऐसे व्यक्ति को आप मिलो, ऐसे ऐसे व्यक्ति के जीवन चरित्र आप पढ़े तो आपको एक दिशा खुलेगी. सी ऑलवेज यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस. ये विद्यार्थी के मन में कई बार ऐसा होता है कि आई एम एक्सपोज टू सोशल मीडिया, मेरे पास इंटरनेट है. सी नाउ लिसन दिस सेंटेंस व्हाट आई स्पीक वेरी केयरफुली. Internet, that is Google and everything, social media can give you loads and loads of information. But to convert that information into knowledge, you should have a desire. And to convert that knowledge into wisdom is altogether a different task. ये इंटरनेट और गूगल आपके सभी प्रश्न के उत्तर नहीं है, तो सिर्फ आपको माहिती, इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज और विजडम नहीं देते. वो तो आपको प्राप्त करना पड़ता है. इंटरनेट कैन नेवर एंड विल नेवर गिव यू विजडम. क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करने के लिए नॉलेज के साथ विजडम भी चाहिए. वो विजडम ये है कि आप एक्सपर्ट एडवाइस लो. जहां विश्वास है, ऐसे कोई बुजुर्ग हो, बड़े हो, जो अनुभवी हो, जो इस रास्ते पे चले हो, जिसने ऐसी तकलीफ देखी है जीवन में, उनके साथ आप विमर्श करें, खुले दिल से अपने प्रश्न कहे. मैं आपको एक प्रसंग कहूं. सचिन तेंदुलकर को हम सबने खेलते हुए देखा. सचिन तेंदुलकर 15 साल के होंगे. He got his international debut and his first foreign trip
was to Pakistan. भारत की ओर से वे पाकिस्तान टीम के साथ गए, सबसे छोटे आयु में भी थे, और उस वक्त पाकिस्तान के पास पावरफुल पेस बैटरी थी। इमरान खान थे, वासिम अकरम थे, वकार यूनुस थे, और उस वक्त वासिम अकरम और वकार यूनुस तो अपनी पीक पे थे। They could swing deliveries at 95 to 98 miles per hour, मतलब 145 किलोमीटर पर आवर पे वे डिलीवरीज डालते थे। एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड पेस, डेडली कॉम्बिनेशन था उनका। तो वासिम अकरम एज ऑफ द क्रीज से अवे फ्रॉम द बॉडी डाल सकते थे, मतलब पिच होके बॉल राइट हैंड बैट्समैन के लिए आउट स्विंग होता था, अवे फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड द ऑफ स्टंप तो पीछे विकेट कीपर और 3 स्लिप खड़ी रहती थी। वकार यूनुस थे, राइट आर्म पेस थे, वो काफी इन स्विंग डाल सकते थे। तो बैट्समैन के लिए ये बैट्समैन भी बहुत हैरान रह जाते थे। और पाकिस्तान ने इस वक्त भारत को हराने के लिए सभी पिच पे थोड़ा थोड़ा घास रखा था, पूरा नहीं काट डाला था, ताकि स्विंग बॉलर्स को पूरी यारी मिले। पहली टेस्ट कराची में थी, सचिन तेंदुलकर वाज आउट फॉर 0, सेकंड इनिंग्स में आउट फॉर 50, टूट पड़े अंदर से। वापस पेविलियन में जब आए 15 स्कोर करके, और उस 15 रन करते करते तो उनको बहुत तकलीफ पड़ी। ही वाज बिटन एन नंबर ऑफ टाइम्स बाय अकरम एंड वकार यूनुस। पेविलियन में वापस आए, ड्रेसिंग रूम में ये पैड वगैरह सब निकाले और सीधे बाथरूम में चले गए और रोने लगे सचिन तेंदुलकर। ये प्रसंग अभी 1-1.5-2 महीने पहले उनका जन्मदिन था, उन्होंने ही मीडिया में शेयर किया था और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था। रोने लगे और आईने के सामने बाथरूम में खड़े खड़े अपने आप को कहने लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं, दिस इज टू मच फॉर मी, I cannot play international cricket against such pace bowlers like Waqar Yunus and Wasim Akram. Their swing, their pace, their accuracy, their line and length are devastating. मैं तो स्कूल क्रिकेट खेलूंगा, डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया में खेलूंगा, दिस इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैं जाके कोच को बोल देता हूँ कि मुझे नहीं खेलना है। फिर तो मुंह साफ करके वापस बाहर आए। रवि शास्त्री बैठे थे, रवि शास्त्री के बाजू में आके बैठे, आज हमारे कोच हैं रवि शास्त्री, और सचिन तेंदुलकर ओपन डाउन। देखो ये करना है, जब जीवन में क्राइसिस आए, तब जहां आपको विश्वास हो, कोई अनुभवी व्यक्ति हो जो इस मार्ग पे चले हो, जिन्होंने ऐसी क्राइसिस जीवन में देखी है, उनका अनुभव क्या है वो आप पढ़ें, उनकी रीत भात क्या थी इस क्राइसिस से बाहर आने की, वो आप सुने, देखें, सोचे, अपनाने का प्रयत्न करें। तो उससे आपको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ हिम्मत मिलेगी, कुछ एक एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। रवि शास्त्री को बाजू में बैठ के सचिन ने कहा कि सर दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये बहुत पावरफुल पेस बॉलर्स है। रवि शास्त्री ने उनको डांटा। रवि शास्त्री ने बोला कि सचिन यू आर टैलेंटेड, आपके पास टैलेंट है, लेकिन आपकी गलती ये है कि यू आर प्लेइंग एज इफ यू आर प्लेइंग अ स्कूल मैच। जैसे स्कूल मैच में हर एक गेम को आप मारने का प्रयत्न करते हो, यू आर ट्राइंग टू हिट ईच एंड एवरी बॉल, सो यू आर गेटिंग बिटन। दिस इज नॉट अ स्कूल गेम, दिस इज एन इंटरनेशनल गेम। हर बॉल को आप मार नहीं सकते, ये एटीट्यूड बदल दो, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द अपोजिशन स्ट्रेंथ। ये बॉलर्स जो आपके सामने गेंद डाल रहे थे, इमरान खान, वासिम अकरम, वकार यूनुस, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। बड़े बड़े बैट्समैन उनसे तकलीफ में आ जाते हैं, और जब उनका दिन होता है, वकार यूनुस या वासिम अकरम का जब दिन होता है, मतलब एक लाइन एंड लेंथ, एक पिच उसके हाथ में आ गई, तो 5-7 विकेट ले लेते हैं एक ही सेशन में। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट टैलेंट। जैसे आप स्कूल में या डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी बॉलर के सामने ऐसे ही फटके मारते थे, तो ये मत सोचना, ये मत एटीट्यूड रखना कि हर गेंद पे इन लोगों को आप मार पाओगे। यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, मतलब डिफेंस रखना। और फिर एडवाइस दी कि देखो इंटरनेशनल टेस्ट में सबसे पहली जरूरत ये होती है कि आप आधे घंटे तक पिच पे टिके रहो। तो रवि शास्त्री ने सचिन तेंदुलकर को ये एडवाइस दी कि पहले आधे घंटे तक स्कोर बोर्ड के सामने मत देखना, जम जाना, अपनी आंख फील्ड पे सेट कर देना, जो बॉलर्स डाल रहे हैं उसकी लाइन एंड लेंथ ठीक तरह से जान लेना,
फिर रन स्कोरिंग चालू करना, ये एडवाइस मिली। तो ये 1989 में सेकंड टेस्ट में फैजलाबाद में सचिन तेंदुलकर गए एंड ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल हाफ सेंचुरी, 59 उन्होंने स्कोर की। फिर उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, वापस आए पेविलियन में 59 स्कोर करके रवि शास्त्री को उन्होंने हक कर लिया। That was a golden advice from you. I stuck to the wicket for the first half an hour, didn't bother about the scoreboard. Runs will come after that, but first let me get set into the situation. तो देखो, एक छोटी सी एडवाइस सीनियर की, आप विद्यार्थी हो, बुद्धिशाली हो, टैलेंटेड हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज भी थोड़ा है, लेकिन विजडम नहीं है। विजडम तो एक्सपीरियंस से आता है। तो जिनके पास है, तो ईगो मत रखना, या आई एम 9.5 scoring student and I'm intelligent, I'm talented, so I can find my solutions. और अगर थोड़ी हेल्प चाहिए तो मैं गूगल से ले लूंगा। ये एटीट्यूड बहुत खराब है। तो सीनियोरिटी का क्या मतलब, एक्सपीरियंस पर्सन का क्या मतलब? जिन्होंने ये आपसे ज्यादा दिन देखे, चांद तारे और सूर्य बहुत बार आपसे ज्यादा बार देखे, उनका कोई वजूद ही नहीं आपके जीवन में। तो एक्सपर्ट एडवाइस से बहुत बड़ा काम होता है। तो ये विजडम, ये भी बहुत जरूरी है टू टर्न क्राइसिस। तो देखो, सचिन तेंदुलकर टर्न द क्राइसिस इन हिज लाइफ इनटू अपॉर्चुनिटी, इनटू सक्सेस, एंड वी नो that a great career started thereafter, scoring 100 international tons, 200 test matches, god of cricket, master blaster, everything. मैथ्यू हेडन एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको पूछा गया था सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये कहा कि yes, I have seen God and he plays at number 4 in India. इतना मान सम्मान मिला, आज कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। तो देखो, कहने की बात यह है कि यू कैन टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी बाय योर नॉलेज, बाय योर टैलेंट, बाय योर एक्सपर्ट एडवाइस, बाय योर विजडम। तो उस तरफ थोड़ा ईगो कम करके, बड़ो अनुभवी लोग हैं, उनके पास से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। और एक अच्छी बात आपको सुनाना चाहूंगा कि टू टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू, ड्यूरिंग द क्राइसिस, keep a thought that maintains your stability. Stable from within props up some good thoughts, inspires you for some good action, and create alternate solutions. हमारे गुरु हरि थे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने ये बीएपीएस संस्था विश्वव्यापी बनाई। मैं जिस संस्था में से आता हूँ वो बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था, आपने शायद अक्षरधाम देखा होगा, गांधीनगर में अक्षरधाम देखा होगा, दिल्ली में एक सुत्ता शेखर पे, वहां दिल्ली में यमुना के किनारे है। और अभी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बड़ा अक्षरधाम जैसा कैंपस बन रहा है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। और अब 10 महीने पहले शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या देखा होगा टीवी पे कि अबू धाबी के राजा हिज रॉयल हाइनेस शेख जयद ने हम बीएपीएस संस्था को दुबई अबू धाबी एक्सप्रेसवे, शेख सैयद एक्सप्रेसवे पे 27 एकड़ जमीन गिफ्ट में दी, डोनेशन में दी कि आप यहाँ एक अक्षरधाम जैसा कैंपस बनाए। उसका भी कंस्ट्रक्शन काम चालू है, फाउंडेशन पूरा हुआ है। ये प्रमुख स्वामी महाराज के विचार थे और उनका ये कार्य। आज अमेरिका में भी रॉबिन्सविल में 265 एकड़ पे अक्षरधाम बन रहा है। भव्य, अति भव्य भारतीय संस्कृति और भगवान स्वामीनारायण के जीवन और कार्य को ये अंजलि है। और हजारों लोग ये अक्षरधाम से अपना जीवन परिवर्तित करके जाते हैं। हजारों डिवोर्सेस अक्षरधाम में आने के बाद बच गए हैं। हजारों विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास के लिए प्रेरणा अक्षरधाम से मिली है। हजारों डिप्रेस्ड यंगस्टर्स या स्ट्रेस्ड यंगस्टर्स को एक एम्बिशन मिला है, एक एम मिला है, एक एटीट्यूड मिला है अक्षरधाम आने से। ऐसे हमारे पास हजारों प्रसंग है, मैं वो कहने बैठू तो कल सुबह 24 घंटे चले जाएंगे। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कार्य किया, ऐसे छोटे मोटे 1300 से ज्यादा कैंपस प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरे विश्व में खड़े किए। अक्षरधाम हो, संस्कार केंद्र हो, मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हॉस्टल हो, कॉलेज हो, 1300 campuses. 45 years he was the
गुरु ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, चलो राउंड फिगर ले लो 50 साल में 1300 कैंपस, मतलब हर साल 25, मतलब हर 2 हफ्ते में, because the year is made up of 52 weeks, so every second week he came up with a campus, that is every 15th day, हर 15 दिन 50 साल तक, every 15th day he gifted an institute to the organization, a hospital or a school or a hostel or a college or Akshardham, a mandir or a Sanskar Kendra. Imagine, मतलब हर 15 दिन ये वाक्य शांति से सुनना. Every 15th day, Pramukh Swami Maharaj in his career spanning 50 years as guru of this organization, 45 years, ground figure 50 लेते, every 15th day, a land was purchased, एक जमीन खरीदी, लीगल प्रोसेस लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज में उसका पूरा हुआ, वहां क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, जो भी, वो तय हुआ. आर्किटेक्ट ने प्लान्स बना दिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने देख लिए, प्लान्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में पास हो गए, उसका फंड रेज हो गया, डोनर्स मिल गए, टेंडर्स आउट हुए, टेंडर्स तय हुए, कंस्ट्रक्शन काम चालू हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, ऑनररी व्यक्ति जो ये संस्था ये केयर करेंगे, संस्था चलाएंगे, वो व्यक्ति मिल गए, इनॉग्रेशन सेरेमनी डिजाइन होगी, इनॉग्रेट हो गया, और ये सेवा में, समाज की सेवा में ये संस्था जुड़ गई. इतनी सारी कार्यवाही हर 15 दिन, हर 15 दिन में एक ये कार्यवाही पूरी करना 50 साल तक. इमेजिन व्हाट प्रमुख स्वामी महाराज हैज डन अपॉन दिस अर्थ. उनका जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, तो उनके जीवन में से ये सीखना है. उनके जीवन में भी उन्होंने क्राइसिस देखी, अपोजिशन देखा है, क्रिटिसिज्म देखी है, कोर्ट जजमेंट्स उनके प्रोजेक्ट के विरुद्ध आए, वो देखें, लेकिन अटल रहे, अभिगम सही रखा, और कभी निम्न प्रकार के विचार अपने अंतर में नहीं आने दिए, मन कभी ढीला नहीं पड़ने दिया. लंदन में बड़ा मंदिर करना था, 90 की बात है, 1990 की, एक जमीन प्रमुख स्वामी महाराज की बीएपीएस संस्था ने खरीदी, वो नीजडन एरिया में थी, तो वहां सब प्लान्स फिगर तैयार तो हो गए, लेकिन लोकल जो नेबरहुड था, उन्होंने एक केस दर्ज किया कोर्ट में बीएपीएस संस्था के विरुद्ध कि ये लोग यहाँ मंदिर बनाएंगे, उनके बहुत सारे अनुयायी यहाँ आएंगे, दिन भर भीड़ रहेगी, और रात को ये लोग 12 बजे तक घंट बजाएंगे, कुछ आरती करेंगे, कुछ ढोल बजाएंगे, तो हमारी पीस और प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी. हमने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, सभी मंदिर में, देवस्थान में रात को 9 बजे तो मंदिर बंद हो जाता है, कोई प्रवृत्ति नहीं होती उसके बाद, लाउड स्पीकर नहीं चलते हैं. फिर भी केस दर्ज हुआ, केस चला, हमने भी एक अच्छा एडवोकेट रखा था, उन्होंने भी रखा था, सिग्नेचर कैंपेन नेवर उनमें चला, उन्होंने भी सिग्नेचर कैंपेन चलाया, हमने भी चलाया, और उनके पास वो लोकल्स थे, हम तो बाहरी थे, उनको ज्यादा सिग्नेचर मिली, और सभी कुछ प्रेजेंटेशन था, तो कोर्ट ने यह जजमेंट दिया, फुल एंड फाइनल जजमेंट, कि बीएपीएस संस्था यहाँ मंदिर नहीं कर सकती. और ये बहुत ग्रैंड मंदिर था, अक्षरधाम जैसा. प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ उस वक्त भारत में थे, बड़ौदा में थे, और लंदन से हमारे ट्रस्टी श्री ने फोन किया कि स्वामी जी हम केस हार गए, अब वहां हम ये प्रकल्प नहीं कर पाए. ये फुल एंड फाइनल जजमेंट. किसी भी व्यक्ति के लिए अपना स्वप्न टूट जाना, अपने सामने पूरा स्वप्न बिखर गया, कोई भी व्यक्ति अंदर से टूट जाता है. इट वॉज अ शॉक फॉर प्रमुख स्वामी महाराज. It was a severe setback for Pramukh Swami Maharaj's efforts for satsang activities for the good of humanity there in London and England and Europe at large. वो हमारा यूरोप का हेडक्वार्टर्स था और है लंदन. लेकिन जब ये शॉकिंग न्यूज आए, प्रमुख स्वामी महाराज का रिस्पॉन्स क्या था. देखो, एक पर्सनल लाइफ में क्राइसिस आई, तो प्रमुख स्वामी महाराज का रिस्पॉन्स क्या था. हमारे एक बड़े संत सदगुरु वर्य परम पूज्य विवेक सागर स्वामी ने ये प्रत्यक्ष देखा, सामने ही खड़े थे. पहला वाक्य प्रमुख स्वामी महाराज बोले, और कुछ आपको प्रवचन में याद ना रहे तो इतना याद रहे. पहला वाक्य प्रमुख स्वामी महाराज बोले, जैसी भगवान की इच्छा. He stabilized himself. He calmed himself down.
देन दूसरा वाक्य वे बोले कि हमने तो अपना पुरुषार्थ कर लिया था, अब जो भी परिणाम आया हम स्वीकार। एक्सेप्टेंस। यू गेट स्ट्रेस्ड आउट, बोग्ड आउट, इमोशनल ब्रेकडाउन आता है, डोंट एक्सेप्ट द थिंग्स, एक्सेप्ट द हैपनिंग्स। मेरे जीवन में नहीं बनना चाहिए। क्यों भाई? तू ऊपर से आया है, तू देवलोक से आया है, 7 बिलियन की पॉपुलेशन में ये बनना संभव है, किसी के भी जीवन में ये बन सकता है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं बन सकता? नहीं, मेरी लाइफ तो गुडी गुडी जानी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। हमारे सभी के कर्म होते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता ही है। उसमें यही सोचना है कि प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए, काम की सफलता के लिए मैंने अपने पूरे रिसोर्सेज रख दिए हैं। हाँ, रख दिए, बस फिर जो परिणाम आए मुझे स्वीकार करना है। सक्सेस एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ एंड वर्क योर वे आउट, सिंपल। तो दूसरा एटीट्यूड प्रमुख साई महाराज ने ये रखा कि हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया था, पूरे रिसोर्सेज लगा दिए थे, जो भी परिणाम आया स्वीकार कर लेते। और तीसरा विचार विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये विचार रखा, ये बोले भी कि देखो हम सब ने साथ में बैठ के ये तय किया है कि बड़ा मंदिर वहां बनाना है, भारतीय संस्कृति का एक आदर्श दर्शन पश्चिम के लोगों को वहां कराना है। तो ये नक्की हुई बात है, हमने ये बात की है, तो ये जरूर करना है। आप सब लोग साथ में बैठ के विचार करना शुरू कर दो और कोई जगह ढूंढना शुरू कर दो, लेकिन जो तय किया है कि वहां करना है तो जरूर करना है। Forget what has happened, now start the new chapter in your life। ये बहुत बड़ी सीख है। और नई जमीन वहां के हमारे स्थानिक ट्रस्टी ने ढूंढ डाली न्यूजीलैंड में, वहां बड़ा मंदिर बना, स्टोन्स, ग्रेनाइट, मार्बल सब यूरोप से आते थे कंडला में, कंडला से राजस्थान जाते थे, गढ़ाई होती थी, वापस कंडला आते थे और कंटेनर्स में शिप में वहां लंदन जाता था। फर्स्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था वो, बड़ा इतना बड़ा कि मेड इन इंडिया एंड असेंबल्ड इन लंदन, इट वाज अ मास्टरपीस। और जब बना 1995 में, तब रीडर्स डाइजेस्ट ने लिखा कि इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आज भी वो प्रेरणा दे रहा है। लंदन की एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाकी नहीं है जिनके स्टूडेंट्स वहां ना आए हो। और आर्किटेक्चर की दृष्टि से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से, और जो वाइब्रेशंस वहां के जो वाइब्स हैं उसका उस दृष्टि से, और वहां जो अभी वो पूरी प्लेस जो मैनेज होती है वो मैनेजमेंट की दृष्टि से कहीं ना कहीं सीख लेके जाते हैं, निबंध लिखते हैं, शॉर्ट एसेज लिखते हैं। और आज 2000 के साल में, द टर्न ऑफ द मिलेनियम, इट वाज टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग्स ऑफ लंदन। तो देखो, क्राइसिस से हारना नहीं है, तकलीफ आई, अपोजिशन आया, डिस्टर्बेंस आया, कुछ मिसमैनेज हो गया, उससे डरने की जरूरत नहीं है। एटीट्यूड ये रखना है कि करेंगे, कर पाएंगे, लेट्स गो फॉर द ऑल्टरनेटिव। देखो, ये ऑल्टरनेटिव है कि नहीं? अच्छा, हम गणपत यूनिवर्सिटी अगर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट चालू होते तो हम आपके पास आते और बात करते, तो अभी नहीं आ सकते। एक सोशल डिस्टेंसिंग है, अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चालू नहीं हुई है। तो देखो, ये वेबिनार पे हम लोग मिल गए, ऑल्टरनेट है ना हमारे पास। तो देखो, ये ऑल्टरनेट हम घर बैठे ये बात करते हैं और सुनते हैं। तो कहने की बात यह है कि देयर इज एन ऑल्टरनेट टू एवरीथिंग। ये भी एक विचार क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए मन में रखना। देयर इज एन ऑल्टरनेट टू एवरीथिंग। If one door closes, the other door has to open. It opens, it will open, rather it is already open. You don't see it. आप नहीं देख रहे, बाकी तो दरवाजा खुल गया है। और अंतिम बात ये करनी है, भगवान पे श्रद्धा रखना। जैसे माता पिता पे श्रद्धा है तो वयम अमृतस्य पुत्रः, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। भगवान पे श्रद्धा रखना। बहुत अच्छी कहावत है अंग्रेजी में कि इफ गॉड रब्स यू अगेंस्ट अ स्टोन, if God rubs you against a stone, then keep patience and keep a thought that he is polishing a gem out of you। कितना अच्छा विचार है। मतलब भगवान ने अपने जीवन में कोई परिस्थिति खड़ी कर दी कि आपको बहुत तकलीफ आई, इज रबिंग यू अगेंस्ट स्टोन, कीप पेशेंस, धैर्य बनाए रखो। he will produce
a shining gem out of you. And if God takes you to the edge of a cliff, of a mountain, and throws you from there into a 10,000 feet deep valley, then also keep patience, because either he will be down there under, catch you, or he will give you wings to fly. कितना अच्छा ये विचार है, कितनी अच्छी ये बात। तो श्रद्धाएं बनाए रखना कि भगवान हमारा दुश्मन नहीं है। ये परिस्थिति में से मैं बाहर आ जाऊंगा, वो मैं श्रद्धा और भक्ति रखूंगा तो मुझे जरूर कुछ प्रेरणा भगवान करेंगे, और की हुई है। कई लोगों को ये प्रेरणा मिली है। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन हमने बहुत नजदीक से देखा है। उनका जीवन चरित्र भी अभी प्रस्तुत हुए हैं, उनके प्रथम 3 भाग। उनके जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि उनको भगवान ने एक अटल श्रद्धा दी कि भगवान जो करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं। भगवान जो परिस्थिति का निर्माण करते हैं वो सभी के अच्छे के लिए, अभी दिखता नहीं। Sometimes you have to go 2 steps back to take a big leap. प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये श्रद्धा बहुत बड़ी थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो till the age of 95 kept on growing the 162 different kinds of activities that we do worldwide. और हमारे जैसे 1200 संतों को उन्होंने दीक्षा दी। It's a big achievement for anybody. और वे दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में घूमे गए, सभी को ये सत्संग की शिक्षा दी, अध्यात्म सभी को सिखाया, और 3.5 लाख से ज्यादा घर वे गए, निर्व्यसनी जीवन जीना सिखाया, लोगों को संस्कृत किया, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, और एक चारित्रवान समाज उन्होंने तैयार किया। तो ये श्रद्धा से होता है। और now it has been scientifically proved, ये बात से मैं अपना प्रवचन पूरा करूंगा। Now it has been scientifically, clinically, experimentally proved by the University of Philadelphia and University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg और Dr. H.G. Quinn ने साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर ये सब्जेक्ट्स पे लगा के, मतलब जो प्रयोग में जो व्यक्ति शामिल थे उनको साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से टेस्ट किया कि जब वो प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो किस प्रकार के हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। तो जब आप स्ट्रेस में हो, क्राइसिस में हो, टेंशन में हो, गुस्से में हो, तकलीफ में आ जाते हो, इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हो, तब आपके शरीर में 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक कॉर्टिसोल है और दूसरा है एपिनेफ्रिन। ये स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स है, स्ट्रेस क्रिएटिंग हार्मोन्स है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की आपकी धड़कन बढ़ जाती है, पसीना छूट जाता है। उसी वक्त अगर आप प्रार्थना में जुड़ जाए, भगवान के नाम स्मरण में जुड़ जाए, तो एंडोफिन नाम का एक हार्मोन भी रिलीज हो जाता है, ब्रेन कमांड देता है। और ये एंडोफिन नाम का जो हार्मोन है उसमें ताकत है, वो कॉर्टिसोल हार्मोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन को दबा देता है, उसका प्रभाव कम कर देता है। और एंडोफिन हार्मोन में ये ताकत है, वो आपको कूलनेस, कामनेस, स्टेबिलिटी वो आपको प्रदान करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। मैंने आपको यूनिवर्सिटी के नाम दिए, मैंने आपको प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स के नाम दिए, मैंने आपको हार्मोन्स के नाम दिए। आप गूगल पे जा सकते हो, किसी एक्सपर्ट को पूछ सकते हो। तो स्पिरिचुअलिटी में ये ताकत है, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति में ताकत है। ड्यूरिंग क्राइसिस, ड्यूरिंग सेटबैक्स, फेलियर्स, इट कैन गिव यू कामनेस एंड स्टेबिलिटी। कामनेस रही, स्टेबिलिटी रही, तो आप अच्छे विचार कर पाओगे, यथार्थ भावना आप में से व्यक्त होगी, आप रिलेशनशिप्स क्रिएट कर पाओगे, और यही रिलेशनशिप से, यही सही विचार जो नॉलेज की वजह से, लेकिन कामनेस और स्टेबिलिटी के फाउंडेशन से अच्छे विचार आएंगे, तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे। यू कैन कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये थोड़ी चंद बातें थी टू टर्न योर क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। My all prayers for all you students, for all you faculties, and all the live audience in this webinar today. May Bhagwan Swaminarayan, may Guru Pramukh Swami Maharaj, and may our present Guru, Param Puja Mahant Swami Maharaj, bless you all. आपको बल दे, आपको बुद्धि दे, आपको शक्ति दे
कि आप इस क्राइसिस को एक छोटी सी कोई अवसर में आप परिवर्तित कर सके, कोई एक मौका आप ढूंढ सके ये क्राइसिस में, and you can come out of this and you can be a wonderful person for yourself, for your family, and for the society at large. Thank you very much. And again, my many prayers for you.